तो आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। एनडीए सरकार जहां रेल और आम बजट पेश करने की तैयारी में है, तो विपक्ष महंगाई, नेता विपक्ष मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले और मंत्री निहाल चंद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सदन के भीतर वही करेगी जो यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी करती रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो सदन में महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। नेता विपक्ष के मुद्दे पर भी कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। केंद्र सरकार किसी पार्टी को नेता विपक्ष का पद देने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस की दलील है कि मौजूदा लोकसभा में वही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए लोकसभा में नेता विपक्ष का पद उसे ही मिलना चाहिए। सदन में होने वाले घमासान के संकेत को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो कई ऐसे मुद्दे विपक्ष के हाथ जहां पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश और रणनीति बना रही यहां पे विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश की सुचारू रूप से ये सत्र चल सके, जिसके चलते सत्र शुरू होने के ऐन पहले यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। जिस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी साफ किया कि तमाम विपक्षी दलों के सहयोग की बात कही गई है इस मीटिंग में और उम्मीद है कि सरकार सुचारू रूप से सत्र को चला पाएगी। प्रकाश बाबण्ण हुक्केरी ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। राजस्थान प्रोफेसर समरलाल जाट। और आपको लगातार हम आपको तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस बजट सत्र के चलते, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि राजनीतिक गलियारों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बजट सत्र में उठने वाले मुद्दों को लेकर। आज से बजट सेशन प्रारंभ हो रहा है। मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इस बजट सेशन सुचारू रूप से चले, एक अर्थपूर्ण संवाद हो करके हम इस देश की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, बाकी भी जो समस्याएं, उसका हम समाधान निकालने की कोशिश करें। मैम, एलओपी का मुद्दा नहीं हो सका था। Honorable members, I have to inform the House the sad demise of Sri Harbhajan Lakha, who was a member of the 9th and 11th Lok Sabha, representing the Philor parliamentary constituency of Punjab. Sri Lakha was a member of the Committee on Labour and Welfare and the House Committee. Sri Harbhajan Ji Lakha passed away on 11 June 2014 in Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, at the age of 72. We deeply mourn the loss of Sri Harbhajan Lakha and convey our condolences to the bereaved family. Honorable members, our 4 persons were reportedly killed and 22 others injured when the New Delhi-Dibrugarh Rajdhani Express derailed in Saran district of Bihar on 25th June 2014. In another tragic accident, about 15 persons were killed and several others injured when the trunk pipeline of Gas Authority of India Limited exploded following a gas leak near Nagaram in East Godavari district of Andhra Pradesh on 27th June 2014. Honorable members, 10 persons, including 5 children and 3 women, lost their lives and 2 others were injured when a dilapidated 4-storied building collapsed in Delhi on 28 June 2014. In yet another tragic accident, over 60 persons lost their lives and several others were injured when an 11-storied
under construction building collapsed due to heavy rains in Chennai on 28 June 2014. The House expresses its profound sorrow of these tragic accidents which have brought pain and suffering to the bereaved families and prays for succor for all the affected people. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti. Now, question number 1, Sri Hansaraj Ahir. प्रश्न संख्या Not now. प्रश्न संख्या 1 Not now. Yes, Mr. Minister. कर महोदय, एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एनडीए शासनकाल में 2003 से पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण करने की जो 5% के लिए स्वीकृति दी गई थी और मंत्री महोदय के जवाब में हमें यह भी बताया गया है कि इथेनॉल की आपूर्ति करने वाली कंपनियां जो कि 5 से 25% इथेनॉल मिश्रण करने की मांग कर रही है और इतनी आपूर्ति करने की उनकी इच्छा है, लेकिन जो जवाब आया है वो जवाब में स्पष्ट है कि 2013-14 तक जो नीति थी 5% इथेनॉल मिश्रण करने की वो पूरी न करते हुए 1.37% ही हमने पेट्रोल मिश्रण तक हम लक्ष्य पूरा कर सके हैं। तो क्या मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में आयातित पेट्रोल हमें बहुत बड़ी मात्रा में बुलाना पड़ता है और इसमें देश की कुछ बचत हो सकती है अगर हम इथेनॉल को अधिक से अधिक पेट्रोल में मिश्रण करें और 5% से लेकर 10% पेट्रोल मिश्रण करने की अनिवार्य नीति बनाने हेतु क्या कंपनियों पर हम लागू कर सकते हैं जिससे कि हमें देश को लाभ मिले? प्रश्न पूछिए। मिनिस्टर को बुलाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक देश के सामने महत्वपूर्ण विषय उठाया है। शुगर इंडस्ट्री की तरफ से 5 से 25% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की मांग है, लेकिन जो पुराने अनुभव है, जो जिस प्रकार की एथेनॉल सप्लाई की क्वांटिटी पिछले अनुभव से 1.37 तक हो पाई है, कुछ प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग नेटवर्क की कुछ प्रश्न जुड़ा हुआ है। जो मूल्य अभी तक एथेनॉल उत्पादनकारियों को मिल रहा है और जो कंपनी जिस पद्धति से ले रहा है उसमें कुछ विवाद है, कुछ विसंगतियां हैं। हमारी शासन आने के बाद ये सारा विषय को संज्ञान में लेके किसान के हित में ये सारा नियमों को एक किसान हितैषी नीति लगाने का हमने तय किया है और आने वाले दिनों में देश के अंदर किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल हम ले पाए, उसके लिए जो दर निर्धारण की नए तरीका हम लागू करने वाले हैं। महोदया, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इथेनॉल का जो मूल्य निर्धारण करने हेतु सरकार ने एक संयुक्त
सचिवों की एक समिति गठित की है और इस संयुक्त समिति ने जो ईबीपी के नीलामी हेतु जो बेंचमार्क तय किया है ये कम है और जो इथेनॉल उत्पादक कंपनियां हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, ये इसे दोषपूर्ण मानते हैं और जिस तरीके से इथेनॉल के मूल्य निर्धारण किए जा रहे हैं इसमें बढ़ाने की मांग की जा रही है, जबकि हम आयातित पेट्रोल को 70 रुपए से अधिक मूल्य देते हैं और हम इथेनॉल को 44 रुपये मूल्य देते हैं। इसे बढ़ाने के लिए और इथेनॉल के उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ नई नीति बनाने जा रही है क्या, या इथेनॉल का मूल्य बढ़ा के देने के लिए सरकार विचार कर रही है क्या? अध्यक्ष महोदय, जो मान्यवर सदस्य की शंका है यह कुछ हद तक वाजिब है। इथेनॉल इस देश में ब्लेंडिंग हो, ईबीपी स्कीम, यह तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह शुरू हुई थी, 2001 में शुरू हुई थी। 2003 में कुछ राज्यों में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित इलाका में यह लागू हुआ। उस समय में सरकार अपनी तरफ से एक दर निर्धारित करती थी। इसके अनुभव जैसे जैसे आगे बढ़ी, 2 महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 5% ब्लेंडिंग मैंडेटरी किया गया है और इसको कैसे लेंगे, इसको एक मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, बाजार मूल्यों के साथ जोड़ते हुए एक पद्धति किया गया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को नई सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसानों के हित सर्वोपरि। जो आज रिफाइनरी की गेट पे जो पेट्रोल की प्राइस 48 रुपया है लगभग, मोदी जी की नई शासन, नई सरकार उसी की तर्ज पे बाजार भाव के अंदर ऑयल कंपनियों के माध्यम से देश के किसानों को इथेनॉल प्राइस दे सकती है। ये हम जिम्मेवारी के साथ आपके सामने जवाब देते हैं। One is the cost of the imported petrol per kilocalorie, the value of anti-dumping agent that is being replaced by ethanol, and lastly, being Swadeshi, the value of energy security and the value of economic activity and taxation generate. Hence, the rate of resource will be determined by independent expert agency, keeping all the factors and more. I am asking the minister now whether the minister is thinking of those lines or not. Rate of ethanol fixing is not on market determined but scientific way. We are importing petrol. What is the rate of per kilocalorie? And ethanol is replacing anti-locking agent. What is the value of it? So also Swadeshi. अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सदस्य ने पेट्रोल और इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में एक प्रश्न उठाया है। उसमें जो माइलेज, उसकी सीधा सीधा कितने माइलेज गाड़ी जा सकती है। पेट्रोल और इथेनॉल में थोड़ा डिस्पैरिटी है। इथेनॉल थोड़ा उससे कम, उसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम है, लेकिन देश के किसानों के हित में, बहुसंख्यक आबादी के हित में उस समय की सरकार ने एक सही फैसला लिया है। उस फैसला को नई सरकार ने और आगे बढ़ाएगी।
एक विनंती करना चाहता हूं, गत 10 वर्ष में सिर्फ नॉन कन्वेंशनल फ्यूल और एनर्जी की सिर्फ बातें हुई है। मोदी सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाकर, कोई एक्शन प्लान बनाकर उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोई योजना बनाएगी? सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा हो तो बताएं। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने एक महत्वपूर्ण तो जैसा का अनुमान था, यहाँ पे हंगामेदार शुरुआत हुई है बजट सत्र की। हमने देखा यहाँ पे लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन फिलहाल क्वेश्चन आवर की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाती हुई, लेकिन यहाँ पे विपक्ष लगातार इस प्रोसीडिंग को बाधित करने की कोशिश में और सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में।